Assalamu alaikum and welcome to this video. In this lesson, we'll learn about the sampling methods. In the last lessons, we learned about what a sample is and why is it so important in statistics, especially the inferential statistics. So we know that sample is a subset from a larger population to represent the entire group. Now, this is very important, and we'll keep on highlighting this, that the sample needs to be representative of the population, which means that for a sample should capture all of the, or as much as it can, the characteristics of the population. Okay, अब वो characteristics क्या होती है वो हम आगे देख लेते हैं. The process by which we draw a sample from the population is known as sampling, or there are well-defined methods available for sampling, जो हम इस lesson में देखेंगे, or it's only that you have to pick up a method which best suits your scenario. Now, since samples are subsets, so we know that now with samples we have fewer number of items to deal with as compared to the entire population. So this naturally reduces the cost, effort, and time required for the analysis. But for this analysis to be of any good use, we must ensure that the sample that we are working with is representative of the population, which means that it captures all the characteristics of the population. Now, these characteristics could be the trends and patterns in terms of the attributes of interest in the population and relationships between elements, again, with respect to the attributes of interest. Now, if your sample does not represent the population, the values that you learn from this sample will not be generalizable to the entire population, in which case any conclusions about the population which you draw based on this analysis on samples which are not representative, those conclusions will be flawed. So once again, it's very important that the samples that you are working with have to be representative of the population. Okay, so this is a graphical representation of the process. We need to have a listing of the population, all the elements which are available to us, and then we select a few of them. How many you select, that depends on your sample size, which you have chosen for your study, and which of these items will be selected, that is guided by the sampling method that you have selected. So why do we need to sample? We have seen that already, but let's just revise it quickly. We know that it is going to save you time and cost and effort because you're working with smaller number of values now. We also saw in the last lesson that there are some scenarios where you do not have any other option but to work with a sample. And these are the cases, one of the kinds of scenarios are when making an observation or inspecting an element of the population actually destroys it. So in those cases, it's not practical to observe every element from the population and destroying it, because at the end you'll not be left with any element of the population available. Then, if we can achieve good accuracy of estimation with sample, there's no point in doing extra work. So if you have selected an appropriate sample, which means that you used a good sampling strategy for that suits your scenario, and you carried out the analysis according to the protocols, the accuracy of the estimation about the populations or conclusions that you make about the population, they're very close to the, it is very high, which means that the values that you learn from samples and generalize it to the population, they're actually very close to the true values of population. So if we can have that with smaller values, there's no point in considering the entire population. That reduces the complexity of the process, it makes it more manageable, and also that we can reach to the conclusions, to the findings very quickly, as compared to the case where you're working with the entire population. Now, before we can actually have a look at the sampling methods which are available, there are a few terms that we need to know. We understand what population is, we understand what a sample is, but here's a new term, which is sampling frame. This is basically just a listing or a database containing all the elements of the population. And when I say all, it's basically the one from which we will be choosing a sample. Ideally, or theoretically speaking, it should be the entire population, which means that a sampling frame should be equal to the entire population. It includes every element of the population, but there will be cases where it's not possible to do that. So just in case of infinite populations, you cannot possibly list them all. So you define a sampling frame, which is a listing of all the elements from which the sample will be drawn.
also that बहुत सारी दफा आजकल खास तौर पे will be doing the selecting the sample using software tools. तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर टूल आपकी किसी ऐसे लिस्ट के साथ काम करेगा ना, वहीं से उठाएगा जहां पर सारी एलिमेंट्स लिस्टेड होंगे. तो सैम्पलिंग फ्रेम की जो डेफिनेशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इवन आफ्टर द कंप्लीशन एट द कंप्लीशन ऑफ योर एनालिसिस प्रोसेस व्हेन यू आर रिपोर्टिंग योर रिजल्ट्स, तब भी आपको अपना सैम्पलिंग फ्रेम देना पड़ता है ताकि आपके रिजल्ट्स की वैलिडिटी को चेक किया जा सके. अच्छा, फिर सैम्पलिंग एरर इज बेसिकली, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इट्स द difference between the true value of a parameter and the value that you've learned from inference, the value that you've learned from analyzing a sample. So the difference between the two is the sampling error, and the cause of this is just probability or chance. We are going to see that what it is in detail in the next slide. Sampling bias is another kind of error, but this is unlike the sampling error. This is not by a chance error. It's actually a systematic error which is introduced when your sampling process was flawed. And why is it that? When some members of the population, they're more likely to be included in the sample than others. So in that case, you definitely are going to end up with unrepresentative samples, which means any conclusions will not be generalizable. And this brings us to this concept of representativeness, which is the extent to which the sample reflects the characteristics of the population. And this ensures that findings can be generalized to the broader group. अगर representative sample है तो आपकी findings पूरे ग्रुप के ऊपर अप्लाई की जा सकती है. जो हमने इन्फ्रेंस की होगी सैंपल से वो आप पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो. लेकिन अगर सैंपल ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो ये नहीं होगा. तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने योर सैंपल हैड सैम्पलिंग बायस, जैसे कि अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द मी एवरेज एज ऑफ students who at the time of admission to a BSSC program at a certain university. तो अब इसके लिए आपको उन तमाम स्टूडेंट्स की जिन्होंने अप्लाई किया और फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं, तो जिस टाइम से उन्होंने अपना सेमेस्टर स्टार्ट किया उस टाइम पे उनकी एज इस टाइम. अब इसके लिए अगर आपने जो सैंपल चूज किया है वो एक यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कैंपसेस हैं उसमें से और मुख्तलिफ शहरों में, तो आपने एक में से ही चूज कर लिया, तो इन दैट केस ये अब आपका बायस सैंपल, because you do not have representation of the entire population. It's just one geographical region which is there in the sample. तो इस केस में सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन. और अब जो आप फाइंडिंग्स करेंगे वो उस रीजन के ऊपर तो अप्लाई कर सकती है, वहां तक तो जनरलाइजेबल है, बट दे आर नॉट जनरलाइजेबल टू द एंटायर population, which means all the new entrants of this program at this university in all the campuses. ठीक है, तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है. और इफ द सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव द फाइंडिंग्स आर जनरलाइजेबल, व्हिच मींस कि अगर आपको पता चला कि अच्छा जो एवरेज एज है ऑफ ए न्यू एंट्रेंट स्टूडेंट इज 19 years, तो नाउ यू कैन सेफली से कि एनी campus has this average age of the students who are entering into BSSC program at this university. लेकिन अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं था तो फिर ये जनरलाइजेबिलिटी नहीं हुई. अब फाइनली बायस, इससे पहले हमने देखा सैम्पलिंग बायस. सैम्पलिंग बायस एक सिस्टमैटिक एरर व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन because of the error in the sampling process. But there can be other factors in data collection also, other than the sampling methods, which can cause the findings to be biased. और for example कैसे हो सकता है कि आपने डेटा सर्वे कर रहे थे और जो आपका सर्वे फॉर्म था that was available only online. So in that case, although आपने टारगेट तो पूरी पॉपुलेशन को किया और उसको सर्कुलेट कर दिया, but only those people who have access to internet or access to the computer or the ones who actually are technically well versed with this technology, only those will be able to provide data for it. तो इस केस में आपके डेटा कलेक्शन के अंदर बायस. Next, let's have a quick look at the difference between sampling error and sampling bias, because this is something students are generally confused about. और इसको हम देखेंगे फ्रॉम थ्री डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. एक तो ये कि सोर्स ऑफ एरर क्या है दोनों के अंदर, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन रिजल्ट्स, दोनों टाइप की जो डिस्क्रिपेंसीज है उनका, और फिर उसको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है. नाउ रिगार्डिंग टू द सोर्स ऑफ एरर, इन केस ऑफ सैम्पलिंग एरर,
या सैम्पलिंग एरर क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द रैंडम फ्लक्चुएशंस व्हिच आर देयर बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द सैंपल। अब सैंपल की वेरिएशन क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन डाइवर्स है। जो भी एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें किसी कंट्री में, और जो आपकी स्टडी है उसमें वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरेस्ट इज एज, ठीक है? तो उस सूरत में आप देखें आपके इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एज, डाइवर्सिटी है उसके अंदर। अब जब आप रैंडम सैंपल चूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि यू आर ट्राइंग टू मेक एज मच रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन एज पॉसिबल, और आपने बहुत सारा इंडिविजुअल्स को यानी कि इस तरह इंक्लूड किए कि रिप्रेजेंटेटिवनेस भी आ जाए, फिर भी द कंपोजिशन ऑफ वन सैंपल इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ अदर सैंपल। जिसकी सूरत में एक सैंपल से जो वैल्यू आप अगर सपोज उनकी एजेस की आप एवरेज भी निकाल रहे हैं, तो इट माइट बी डिफरेंट from the age, average age that you learn from another sample. ठीक है? Because of the changes in the composition and the variations in the composition। और वो क्यों आ रही है? क्योंकि आपकी पॉपुलेशन में ये वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। सो इसीलिए हम इसको कहते हैं चांस इफेक्ट, कि आप जब सैंपल सिलेक्ट करके ला रहे हैं और प्रोबेबिलिस्टिक मेथड से सिलेक्ट होके आ रहा है, तो उसमें कौन से एलिमेंट्स आपके सैंपल में आते हैं, बेस्ड ऑन दैट जो वैल्यूज आप लर्न करें दे कैन वेरी बिटवीन सैंपल्स। सो दिस इज ए सोर्स ऑफ सैम्पलिंग एरर। जबकि बायस के केस में इट्स नॉट बाय चांस, इट्स एक्चुअली ए सिस्टमैटिक एरर व्हिच इज देयर इन योर सैम्पलिंग प्रोसेस या फिर आपके डेटा कलेक्शन के मेथड में, जिसकी एग्जांपल हमने भी लास्ट स्लाइड में देखी है। ठीक है? अगर आपका सैम्पलिंग मेथड फेवर कर रहा है सिलेक्शन ऑफ ए सर्टेन एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन, तो वो आपका बायस सैंपल है, क्योंकि उसमें जो जो लेस फेवर्ड एलिमेंट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रही। सो सैम्पलिंग जो कलेक्शन प्रोसेस है, जो सिलेक्शन है, उसके अंदर बायस है। और इसी तरीके से हमने डेटा कलेक्शन की बायस भी देखा है कि आपने उसको एडमिनिस्टर ऑनलाइन करवाया है, तो अब तो जाहिर है एक एक स्पेसिफिक कम्युनिटी और टाइप ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द इंटरनेट, और या उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं आता, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगी। सो डेटा कलेक्शन के और सैम्पलिंग के जो प्रोसेस के एरर्स है ना, दे आर गोइंग टू लीड टू बायस। जबकि इम्पैक्ट ऑन रिजल्ट्स क्या होगा इन केस ऑफ सैम्पलिंग एरर? ये आपके रिजल्ट्स को की वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल ओनली अफेक्ट द प्रिसिशन, ठीक है? और उसको बड़े आराम से मिटिगेट किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ बायस इन दी वेरी सिलेक्शन ऑफ द सैंपल, जो रीजन है बायस की, या आपकी कलेक्शन के मैकेनिज्म के अंदर कोई एरर्स आ रही है सिस्टमैटिक, तो इन दैट केस व्हाटएवर वैल्यूज यू लर्न फ्रॉम एनालिसिस एंड कंक्लूजंस दैट यू मेक फ्रॉम दोस एनालिसिस, the very validity of those results or conclusions will be questionable, क्योंकि आपका जो प्रोसेस था सिलेक्शन का या डेटा कलेक्शन का वो ही फ्लॉड था। तो उसकी वजह से जो कंक्लूजन आप लर्न करें ना, उनकी वैलिडिटी का ही वो क्वेश्चनेबल हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, अब मिटिगेशन कैसे है? सैम्पलिंग एरर को आप बड़े आराम से रिड्यूस कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, क्योंकि आपकी वेरिएशन अगर पॉपुलेशन की है और आपका सैंपल साइज बहुत बड़ा है और वो तमाम की तमाम वेरिएशन को, वेरिएबिलिटी को एनकम्पस करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो फिर आपके बड़े साइज के 4-5 सैंपल्स जो कंपोजिशन उनकी डिफरेंट होंगी, पर उनसे जो वैल्यूज आप लर्न करेंगे, एवरेजेस निकालेंगे, दोस वोंट बी वेरी डिफरेंट। स्मॉल सैंपल के केस में ये आपको वेरिएशन ज्यादा नजर आएगी। जबकि बायस के केस में आपने अपने प्रोसेसेस को करेक्ट करना है, विच मीन्स दैट आपने सारे प्रोसेसेस को केयरफुली प्लान करना है, अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड चूज करना है, अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन मेथड चूज करना है, और जो कंडक्ट है that should be according to the accepted या well defined protocols. Only then you can reduce the effects of bias. अच्छा जी, चले अब हम देख लेते हैं कि सैम्पलिंग मेथड्स कौन से अवेलेबल हैं। तो ऑन द वेरी टॉप लेवल वी हैव टू ब्रॉड कैटेगराइजेशन ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। Under the probability sampling, we have four further classifications: simple random sampling, which is the most popular one, then systematic sampling, cluster sampling, and stratified sampling. जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर we have three different classifications: snowball sampling, quota sampling, and convenience sampling. We'll have a quick look at each one of them and try to understand what kind of methods each one is and which situation each one of them is suited for. अच्छा, अब ये है प्रोबेबिलिटी सैंपल्स। कौन से सैम्पलिंग है? जहां पे ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज ए नोन non-zero probability of being selected, whatever that probability may be, कुछ भी है but that is known, pre-calculated,
and known which is assigned to every member of the population. ठीक है, और जब हम ये वाली बात करते हैं तो इट शुड एक्चुअली बिकम क्लियर ऑटोमेटिकली कि जब तमाम एलिमेंट्स की कोई नोन प्रोबेबिलिटी है तो विच मींस कि हमारे पास तमाम एलिमेंट्स की एक लिस्टिंग मौजूद है जिनके साथ उनकी असाइंड प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है, जो उनके साथ एसोसिएट प्रोबेबिलिटीज है, दैट इज नोन. नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स ऑन द अदर हैंड कौन से वाले हैं? व्हेन द मेंबर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इन सम नॉन रैंडम मैनर, so they do not have um, the any probability associated to them, और कोई उनकी probability को calculate नहीं किया जा सकता, ठीक है. वो अभी ये चीज क्लियर हो जाएगी कि what it means actually, ठीक है. अच्छा, simple random sampling क्या है? Which is the purest form of probability sampling, and as I said is one of the most commonly used one also, in which every member of the population has an equal चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. नोन तो है बिकॉज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हर मेथड के अंदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी एलिमेंट विल बी नोन बिफोर यू आर एक्चुअली मेकिंग द सिलेक्शन. लेकिन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है. सो द सिलेक्शन ऑफ वन इंडिविजुअल आल्सो डज नॉट इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ अनदर, यानी कि सिलेक्शन ऑफ ईच इंडिविजुअल इज आल्सो इंडिपेंडेंट. मैंने एक आइटम सेलेक्ट किया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई और आइटम इस पॉपुलेशन का सेलेक्ट होने में अब उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है या नहीं, ठीक है. अच्छा, each member is assigned an ID and a random number generator can be used to select a sample. This is how we actually perform the simple random sampling. तो आपको क्या करना होगा? आपके पास जितने भी elements हैं in your population, अब देखो जब population की बात करें, it does not mean necessarily लोग इंसान जो एक country की population की बात नहीं है. It is items of interest to your study, the collection of all the items जो कि क्या हो सकते हैं, एक जगह पे बनने वाले तमाम प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है. एक टाइप के एक ब्रांड के तमाम लैपटॉप्स भी हो सकते हैं. सो वट एवर द डेफिनेशन ऑफ योर पॉपुलेशन इज, उसमें किसी भी किस्म के एलिमेंट्स हो सकते हैं, ह्यूमंस भी और नॉन ह्यूमंस भी, ठीक है. अच्छा, अब हम बात ये कर रहे हैं कि वट एवर पॉपुलेशन यू हैव, you need to have a list of that of every individual member in your population, and we should be assigning it an identifier to each of them. ये क्यों करेंगे? क्योंकि हमने randomly select करने. अब random selection के लिए we have tools available जो कि random generators होते हैं. तो अगर आपने IDs assign कर दी, suppose आपकी population के अंदर 10,000 एलिमेंट्स है, एक फैक्ट्री से बनने वाले 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, वो आपकी पॉपुलेशन, ठीक है. एक दिन में जो 10,000 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सपोज हमने उसको डिफाइन किया एज द पॉपुलेशन फॉर आवर ऑफ आवर इंटरेस्ट. तो वो जो 10,000 आइटम्स है उनको मैं आइडेंटिफायर्स असाइन करूंगी, 0 से लेके 1 से लेके 10,000 तक. अब मैंने अगर उसमें से 1,000 आइटम्स चूज करने फॉर माई सैम्पल, सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज ए रैंडम नंबर जनरेटर जो कि उनमें से 10,000 में से 1,000 आइडेंटिफायर्स को सिलेक्ट करके मुझे दे देगा कि, और रैंडम based on the principles of random number generators, कि ये वाले आइटम्स इंक्लूड होंगे मेरे सैंपल में. उसके बाद फिर मैंने उसके ऊपर जो एनालिसिस करना है वो मैं ही करूँ, ठीक है. अच्छा, अब इसमें नेचुरली समझ आ रही है क्योंकि हमने तमाम आइटम्स को लिस्ट करना है और उनको आइडेंटिफायर्स असाइन करने हैं, तो दिस विल बिकम वेरी डिफिकल्ट इन केस ऑफ ह्यूज पॉपुलेशंस. लार्ज पॉपुलेशन में ये काम मुश्किल हो जाएगा, उनको लिस्ट डाउन करना, उनकी आइडेंटिफायर्स असाइन करना और फिर रैंडम नंबर जनरेटर इतनी बड़ी वैल्यूज के ऊपर चलाना जो कि उनमें से एलिमेंट्स उठाएगा. और फिर वो एलिमेंट्स जब आपके पास आ जाएंगे तो उनको आपने पिक करना है फ्रॉम द पॉपुलेशन. बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर से हमने वो इंडिविजुअल मेंबर्स चूज करने हैं जो आपका सिलेक्शन के अंदर आए हैं, और फिर उसके ऊपर जो एनालिसिस परफॉर्म करना है, ठीक है. तो ये डिफिकल्टी आ जाती है विद लार्ज पॉपुलेशन इन केस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. लेकिन एक और चीज भी है कि अगर आपके कुछ ऐसे पॉपुलेशंस हैं, बड़ी लार्ज पॉपुलेशन, जहां पर कुछ एलिमेंट्स दे हार्ड टू रीच, दे अनअवेलेबल, तो उस सूरत में उनको वो लिस्टिंग में नहीं आएंगे, ठीक है. उनके वो आप अवेलेबल नहीं है आपको, दोज वर नॉट आइडेंटिफाइड, दोज वर नॉट एडेड इनटू द पूल ऑफ आइटम्स जहां से सिलेक्शन होना है, यानी कि इन अदर वर्ड्स वो आपके सैम्पलिंग फ्रेम में नहीं आई. तो दिस मीन्स कि आपका सैंपल जो सिलेक्ट होके आएगा उसमें बायस का आगाज हो चुका है, because the sampling frame or pool of individuals which is available to you exclude some of the members of the population. ठीक है, for whatever reason, hard to reach थे, unavailable थे, but those are not there.
दिस इज अ डिपिक्शन ऑफ द सैम्पलिंग प्रोसेस। अब इसमें नजर नहीं आ रहा कि रैंडम सैम्पलिंग कैसे हो रही है, बट इट्स ओनली दैट कि ये आपके पास पूरी लिस्टिंग अवेलेबल है एंड यू यूज अ रैंडम नंबर जनरेटर टू सेलेक्ट सम आइटम्स, लेकिन उनके ऊपर उनकी आइडेंटिफायर्स होंगे तभी तो आपका जो सॉफ्टवेयर टूल है वो सिलेक्ट करेगा ना, आईडीज के बेसिस के ऊपर। अच्छा, इट इज बेस्ट यूज, दिस मेथड इज यूज बेस्ट व्हेन द पॉपुलेशन इज होमोजेनस, व्हिच मींस कि तमाम एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सिमिलर है, एक जैसी है, कोई ग्रुपिंग्स नहीं है उसके अंदर, एंड ईच मेंबर हैज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, होमोजेनस का ये मतलब है द पॉपुलेशन साइज इज मैनेजेबल एंड a complete list of members is available naturally, unbiased and representative samples are required। ऐसी सिचुएशन में आप यूज करेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। एडवांटेजेस ऑफ कोर्स क्या होंगे? इट इज अनबायस्ड, representative samples, it is simple and transparent। आपके पास सिंपल तो है ना, प्रोसेस बड़ा सिंपल और ट्रांसपेरेंट क्या है, वट एवर यू आर डूइंग इट इज एक्चुअली very transparent, यानी everybody, you have a list of the sampling frame which is published। जब आप अपने रिपोर्ट्स देंगे तो उसके ऊपर आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम आएगा, तो पीपल कैन रिपीट द प्रोसेस। ठीक है, ऑफ कोर्स रैंडमनेस होगी बिकॉज ऑफ द रैंडम नंबर सिलेक्शन, लेकिन जो प्रोसेस है दैट इज ट्रांसपेरेंट। फिर आपके आ जाते हैं रिजल्ट्स आर जनरलाइजेबल, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स है, पॉपुलेशन भी होमोजेनस है, तो जो कुछ आप सैंपल से लर्न करेगा वो पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इट इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग विद लार्ज पॉपुलेशन, मसला आएगा। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि देखिए आपने तमाम पॉपुलेशन को लिस्ट करना है, फिर लिस्ट करने के बाद उनको आइडेंटिफायर्स देने हैं, रैंडम नंबर जनरेटर चलाना है, और उसके बेसिस के ऊपर आपने एक्चुअल इंडिविजुअल्स को पॉपुलेशन में से रिट्रीव भी करना है, जिनसे आपने डेटा कलेक्ट करना है, तो उनको एक्सेस भी करना है। सो दिस बिकम्स एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्स सम एफर्ट। स्मॉल सैंपल्स में भी अनरिप्रेजेंटेटिव एंड ये नॉन जनरलाइजेबल रिजल्ट्स, जो हमने सैम्पलिंग एरर की बात की थी ना, वो यहाँ पर आ सकता है अगर आपने स्मॉल सैंपल साइज को चूज किया, बट दैट कैन मिटिगेटेड एज वी सीन अर्लियर बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। अच्छा जी, अब एग्जांपल्स इसकी क्या हो सकती है? रैंडमली सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स बाय आईडी फॉर अ सर्वे रिगार्डिंग न्यू एकेडमिक पॉलिसी। तो आप क्या करें, देखिए स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी के हैं या स्कूल के हैं, बट जिस भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी स्टूडेंट नंबर्स के बेसिस के ऊपर लिस्ट तो अवेलेबल होती है ना, तो यू कैन क्विकली पास इट टू a random number generator और वहां से आप सिलेक्शंस ले सकते हैं सैंपल की। Randomly selecting individual based on national ID card for telephonic service, तो ये भी हो सकता है। हमारे पास ऑलरेडी जो डेटाबेसेस होते हैं, नेशनल डेटाबेसेस, उसके अंदर तमाम सिटीजन्स के आईडीज या जो नेशनल आइडेंटिफायर्स होते हैं उनकी लिस्टिंग मौजूद होती है, and we can select it randomly from the list to contact people on telephone। ठीक है। अच्छा, इसमें वैसे एक चीज है, आप देखें कि इसमें देर इज अ चांस ऑफ बायस हो। कौन सा बायस? जो कि आपका डेटा करेक्शन का बायस है। कैसे? कि अगर आप टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग सर्विस कर रहे हैं ना, तो आप इंडिविजुअल्स तो रैंडमली चूज कर लेंगे, ठीक है, वो तो रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, बट देन बायस किधर से आएगा कि ओनली दोज पीपल, आपका कलेक्शन का एरर क्या है इसमें, कि ओनली दोज पीपल हु एक्चुअली हैव टेलीफोनिक एक्सेस, तो उन्हीं से आप ये डेटा ले पाएंगे, तो इसमें उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन रह जाएगी जो कि टेलीफोन पे एक्सेसिबल नहीं है, तो ये बायस कलेक्शन का आ रहा है। अच्छा जी, फिर रैंडमली सिलेक्टिंग बायर्स फॉर टेलीफोनिक सर्विस। अब इसमें नॉर्मली आपके जो आप देखें, अगर हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग कोई एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लोथिंग ब्रांड्स की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पर दे ऑलवेज आफ्टर परचेज, आफ्टर someone's done a purchase, they always record the customer's number in their databases, और उसके उनके पास पूरी लिस्ट होती है। किसी ने एक दफा भी परचेज किया तो उन कस्टमर्स का डेटाबेस के अंदर आईडी है, उनका जो टेलीफोन नंबर है वो ऐड हो जाता है। तो उन लिस्टों से भी रैंडम सिलेक्शन हो सकती है अगर उन्होंने कोई सर्विस परफॉर्म करनी है। अच्छा जी, फिर आते हैं सेकंड फॉर्म जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। नाम से पता चल रहा है इट हैज टू डू समथिंग विद द क्लस्टर, बट सवाल ये पैदा होता है कि क्लस्टर है क्या चीज? तो क्लस्टर क्या है? क्लस्टर इज ए ग्रुप। ठीक है, अब वो ग्रुप क्या है? वो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर कुछ ग्रुप्स पॉपुलेशन के अंदर बन सकते हैं, जैसे कि आप ये कहें कि मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले जो लोग हैं ना, दे फॉर्म ए क्लस्टर बिकॉज दे हैव थिंग्स इन कॉमन। ठीक है, जो उनकी सिटी लाइफ है उसके बेसिस के ऊपर, उनके शहर के माहौल, उनकी एनवायरनमेंट, उनका लाइफस्टाइल्स के बेसिस के ऊपर लोगों के अंदर जो लोगों की जिंदगी है उसके ऊपर कुछ असरात ऐसे आते हैं, दे हैव सर्टेन
they develop certain characteristics which is common to all the individuals living in that geographical region. ठीक है, इसी तरह से विद इन ए सिटी आप मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो लोग रह रहे हैं दोस कैन बी आइडेंटिफाइड एज ए क्लस्टर. अब डिपेंडिंग अपॉन आप स्टडी क्या कर रहे हो उसके बेसिस के ऊपर आपकी क्लस्टर की डेफिनेशन आ जाएगी कि वो क्या है. बट इट इज ए ग्रुप व्हिच हैज people which has individual in it which have common characteristics. ठीक है, natural characteristics के basis के ऊपर उनकी कोई division हुई है, कोई grouping हुई है. तो हम क्या करें कि उस population में से instead of selecting individuals we select the entire clusters. ठीक है, जैसे कि मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे मुल्क में फॉर एग्जांपल अगर just hypothetically saying that कि अगर हमारे पास there are 100 cities in our country, ठीक है, suppose that, और उन 100 cities को I take them as clusters, इसका मतलब है कि उसमें जितने भी शहरी रह रहे हैं वो सब they form their group, they're part of one cluster जो कि उनके शहर से represent हो रहा है, उनके city से हो रहा है. Now if I make a list of those 100 cities and randomly pick 10 of them, तो मैंने क्या किया, एक सैंपल कर लिया क्लस्टर्स. ठीक है, ये क्लस्टर सैम्पलिंग है. अब अगर मैं इन क्लस्टर्स के अंदर या इन अदर वर्ड्स इन शहरों में मौजूद जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सबको ऐड कर लूं टू माय लिस्ट ऑफ सैम्पल यानी कि टू माय सैंपल, सो दिस इज वन काइंड ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग. देयर इज अनदर काइंड ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग. ये जो पहली सैम्पलिंग मैं आपको बता रही हूँ दिस इज नोन एज single stage cluster sampling where we pick clusters. First we define the clusters, okay, then we pick clusters randomly and we include all the elements in those clusters, in the selected clusters, we include them into our sample. So this is single stage clustering. Example given है, surveying every student in selected school. यानी कि आप schools तक किसी को study कर रहे हैं for अपनी किसी analysis के लिए, तो आपने जो स्कूल्स को एज अ क्लस्टर आइडेंटिफाई किया और फिर कुछ स्कूल्स को सेलेक्ट कर लिया एज सेलेक्टेड क्लस्टर्स एंड एवरी स्टूडेंट इन दो स्कूल्स इज नाउ एडेड टू योर सैंपल. ठीक है, ये होगी सिंगल स्टेज क्लस्टरिंग. जो सेकंड स्टेज या टू स्टेज क्लस्टरिंग है वो क्या है, इट इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस. पहली स्टेज पे आपने क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए जिस तरह पहले किए, और अब आपने दोबारा एक सब सैंपलिंग लगाई विद इन दोस क्लस्टर, और आप विद इन द क्लस्टर्स यू कैन हैव रैंडम सैंपलिंग. ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, अब जो आपके क्लस्टर सेलेक्ट होके आए थे उनके अंदर जितने इंडिविजुअल्स हैं उनकी लिस्ट बनाए जैसे हमने पहले किया, उनको आइडेंटिफायर्स दे अलग अलग हर क्लस्टर की, और उसमें से फिर आप हर क्लस्टर में से रैंडमली लोगों को चूज करना शुरू कर एंड यू ऐड देम इनटू योर सैंपल. ठीक है, सो दिस इज टू स्टेज क्लस्टरिंग. एग्जांपल क्या है, सर्विंग ए रैंडम सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स विद इन द सिलेक्टेड स्कूल. तो ईच स्कूल रिप्रेजेंट्स ए क्लस्टर. आपने जो सिलेक्ट किए थे स्कूल्स वो बन गए आपके फर्स्ट स्टेज की सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, और फिर सेकंड स्टेज पे आपने विद इन दो सिलेक्टेड क्लस्टर्स आपने इंडिविजुअल्स को ऐड कर लिया अपने सैंपल के अंदर. क्लस्टर सैम्पलिंग आप कब यूज करेंगे, व्हेन द पॉपुलेशन इज लार्ज एंड स्प्रेड ओवर ए वाइड एरिया एंड इट हैज नेचुरल ग्रुपिंग्स इन इट, तब आप यूज करेंगे. और फिर जाहिर है कि इस सूरत में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है एंड इट इज नॉट वेरी कन्वीनियंट टू एक्सेस एवरी इंडिविजुअल मेंबर, और फिर उसकी लिस्टिंग और सारा कुछ जो कि रिक्वायर्ड होगी. अदरवाइज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में तो वहां पे भी आप क्लस्टर की तरफ जा सकते हैं. And of course, the groups they naturally exist in the population. Advantages क्या होंगे as compared to simple random sampling? It is cost effective. It is practical for large population, which is actually which becomes too difficult in case if you have to do simple random sampling for very large populations, and your process becomes very simple. But disadvantages इसके क्या है? बिल्कुल ऑब्वियस है, लेसर रिप्रेजेंटेशन. क्यों? बिकॉज हमने तो 100 में से 10 सिटीज चूज कर ली, तो बाकी जो 90 सिटीज थे उनके रिप्रेजेंटेशन नहीं आए. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिवनेस तो कॉम्प्रोमाइज हो गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑफ कोर्स जो जनरलाइजेबिलिटी ऑफ रिजल्ट है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गई. ठीक है, क्या सर्विंग हाउ स्कूल्स एजुकेट द स्टूडेंट्स अबाउट साइबर सिक्योरिटी इन अ सर्टेन सिटी. तो तमाम स्कूल्स ऑफ द सिटी बिकम क्लस्टर्स एंड देन यू चूज some of those schools, select some of those schools as the selected clusters, or one stage sample. फिर अगर two stage clustering करेंगे तो उसमें फिर आप within those selected clusters भी आप individual students को choose करेंगे. Studying the punctuality of the government employees across the nation. तो again city या province को आप cluster ले लें और फिर डिपेंडिंग अपॉन आप सिंगल स्टेज करें टू स्टेज करें, आप अपनी सैंपल को बिल्ड करेंगे वहां से. तीसरी आ जाती है हमारे पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, और ये क्या करते हैं, बड़ी आसान है ये. इसमें भी आप बिल्कुल रैंडम सैम्पलिंग की तरह यू हैव ए लिस्ट ऑफ द एंटायर
पॉपुलेशन, लेकिन उसमें थोड़ा सा एलिमेंट आ जाता है कि इट इज ऑर्गेनाइज्ड, कोई ऑर्डर उसके अंदर मौजूद होगा, और उसमें से फिर फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड लिस्ट यू सिलेक्ट एवरी सर्टेन एलिमेंट, ठीक है, nth एलिमेंट स्टार्टिंग एट ए पॉइंट, यानी कि आपने जीरो से स्टार्ट किया और फिर हर सेकंड एलिमेंट चूज किया, तो उसकी डिपिक्शन यहाँ पे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आई हैड दिस पॉपुलेशन, और उसके ऊपर ये जो आईडीज थी इनको मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया एज असेंडिंग, एंड देन क्या किया, मैंने कहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम दी बिल्कुल जीरो पोजिशन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट एवरी सेकंड एलिमेंट, सो 1 2 2 से 3 4 5 6 7 8 and 9 10, so I get 2 4 6 8 and 10 in my, ठीक है। अगेन nth कुछ भी n कुछ भी हो सकता है, और स्टार्ट आप कहाँ से करें, जरूरी नहीं कि बिल्कुल बिगिनिंग से करें, आप दरमियान में भी कहीं से उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो दिस इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इस्तेमाल कब करेंगे, जब पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज एंड इट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए लिस्ट, ऑर्डर्ड डेटा आपके पास है, कस्टमर्स लिस्ट, जैसे कि पहले भी हमने देखा है ना, जो हमारे पास अगर कोई sellers हैं, they are maintaining the list of customers, तो you can always organize them by their telephone numbers और या names के, अगर नेम का डेटा मौजूद है तो उसके ऊपर आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अल्फाबेटिकली भी। The population is homogeneous. So, in such cases where we have heterogeneity in the population and we have different subgroups which are very different from each other in the population, in those cases, using the systematic sampling might result in bias. ठीक है। अच्छा, इसमें फिर एडवांटेजेस इसके क्या है, सिंप्लिसिटी, इस अप्रोच की सिंप्लिसिटी है, एफिशिएंट कंपेयर्ड अगेंस्ट दी जो हम करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और इवन कवरेज दे सकती है, लेकिन अगेन हमने देख लिया कि इन केस व्हेन यू हैव दी पॉपुलेशन के अंदर होमोजेनिटी ज्यादा है, ठीक है, तो उस सूरत में ये आपको प्रोवाइड कर सकती है ठीक ठाक कवरेज। अच्छा, फिर आ जाती है इसकी एग्जांपल। अच्छा, डिसएडवांटेजेस इधर मिस हो गए, बट डिसएडवांटेजेस बड़ी क्लियर है। ऐसी सूरत में जहां पर आपके पास सब ग्रुपिंग्स है, वहां पे इफ यू अप्लाई दैट इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन बायसेस, और जो सैम्पलिंग बायस है, और फिर जाहिर है कि उसकी वजह से रिप्रेजेंटेटिवनेस का मसला है। अच्छा, इसके अगर एग्जांपल कंसिडर करें तो सपोज वी आर कंडक्टिंग क्वालिटी चेक्स एंड वी चूज टू पिक एवरी 20th प्रोडक्ट कमिंग आउट ऑफ अ फैक्ट्री, जो कि हम ले लेते हैं अपने सैंपल के अंदर, ठीक है। तो this is an example of systematic sampling. अच्छा, but the caution highlighted here is that we need to be watchful for any hidden patterns in the population which coincide with our systematic sampling configuration, और उसकी वजह से bias आने के रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसी सिनेरियो को देखें तो सपोज कि आपकी जो प्रोडक्शन फैक्ट्री थी, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन हो रही थी प्रोडक्ट्स की, और बैचेस थे 30 के बैचेस के अंदर प्रोडक्ट्स बनते थे, 30 का एक प्रोडक्ट का बैच बनता था, और वो सिक्वेंशियली प्रोडक्ट्स आउट हो रहे होते थे, और फिर थोड़ा सा सिस्टम रीसेट होता था या पूल किया जाता था, फिर स्टार्ट होता था, एंड सो ऑन। नाउ इफ वी इन सच अ सिनेरियो, हमने चूज कर लिया कि एवरी 20th आइटम विल बी पिक्ड एंड एडेड इनटू द सैंपल, और उसको फिर हम इंस्पेक्ट करेंगे। अब सपोज सिस्टम की जो वो जो ऑटोमेटेड फंक्शनिंग थी उसके अंदर कोई एरर्स एक्यूमुलेट हो रहे थे, और उसकी वजह से सिस्टम हीट अप हो रहा है, एंड बाय द टाइम इट रीच टू द प्रोडक्शन ऑफ से 16th और 17th, यानी कि आफ्टर 15 आइटम्स के बाद वो काफी हीट अप हो जाता है, एंड टू एन एक्सटेंट दैट इट इट प्रोड्यूस डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैल फॉर्मेशन आ जाती है प्रोडक्ट उसकी प्रोडक्शन के। तो इस केस में 30 का बैच कंप्लीट हुआ, जाहिर है कि 10 के या 15 के बाद जितनी भी थी वो डिफेक्ट्स बढ़ते 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 30 फिर थोड़ा कूल डाउन हुआ, एंड देन इट स्टार्टेड अगेन। तो इस सूरत में व्हेन वी पिक the 20th item, we are going to get all the defected items in the sample, और जो कि आपको इनकरेक्ट कंक्लूजन्स करने पे मजबूर कर सकता है कि आपकी पूरा का पूरा बैच जो है वो डिफेक्टेड है, या पूरी असेंबली जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो इट कंटेन्स डिफेक्ट। Another example is surveying households where addresses are listed sequentially. Okay, then comes the stratified sampling, and it is a technique of probability sampling where the population is divided into subgroups, which are known as strata, based on shared characteristics, and samples are drawn from each strata. So it's similar to the cluster sampling, but there's a difference, and we are going to see what it is. So we have a population,
which you can see here, और इसमें ये जो कलर डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं आपको, ये बेसिकली उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, बेस्ड ऑन दैट ये इंडिविजुअल्स को कलर कोड किया गया. तो व्हाट वी डू बेस्ड ऑन द similarity in characteristics of these individual members, we pull out the strata from the this population. ठीक है, तो एक strata आ गया, stratum आ गया, दूसरा, तीसरा, and then we do simple random sampling of or maybe systematic sampling within these strata. अच्छा, अब strata आपके किस basis के ऊपर होंगे? जो सब ग्रुप्स आ रहे हैं ना, जैसे कि क्या हो सकता है बेस्ड ऑन जेंडर. सो वो हमने स्ट्रेटा बना लिया, बिकॉज वी इफ वी वांट द representation of सब ग्रुप्स, और वी वांट टू इंश्योर कि आपकी जो सैंपल है उसके अंदर उन सब ग्रुप्स की प्रोपोर्शन सिमिलर हो, जितनी प्रोपोर्शन उनकी पॉपुलेशन में आ रही है, तो उसके लिए आप उनको स्ट्रेटास डिफाइन कर सकते हैं और उनके अंदर से फिर सैम्पलिंग हो सकती है. ठीक है जी. अच्छा जी, अब क्या है, when is it ideal to use the stratified sampling is when the population is heterogeneous with subgroups which are based on similar characteristics, जैसे कि लोगों की एथनिसिटी है, ठीक है, जेंडर है, एजुकेशन के बेसिस. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अच्छा, हमने अगर सैंपल करना है पॉपुलेशन में से सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री, और हम उनके स्ट्रेटा बनाए उनकी एजुकेशन लेवल के ऊपर, यानी कि पीपल हु हैव जस्ट अटेंडेड द स्कूल वो एक स्ट्रेटा हो, जिन्होंने कॉलेज तक किया है वो एक स्ट्रेटा हो, फिर यूनिवर्सिटी तक गए एक स्ट्रेटा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है वो एक स्ट्रेटा, एंड सो ऑन. ठीक है, इसी तरीके से जेंडर के बेसिस के ऊपर हो सकता है, इसी तरीके से लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर हो सकता है. ठीक हो गया. तो अगर हम इनकी रिप्रेजेंटेशन इक्वल प्रोपोर्शन में चाहते हैं एज इट इज इन दी पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन में, तो फिर वी कैन यूज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, और हर स्ट्रेटा में से कितना हमने उठाना है, एक कितना आइटम्स उठाने एक स्ट्रेटम में से, that can be decided according to the proportion of this type of this subgroup in the overall population. तो representation of each subgroup is required. अगर ऐसी कंडीशन है ना आपकी कि नहीं, आप चाहते हैं कि आपकी तमाम subgroups की complete representation आ जाए, तो उस सूरत में फिर आप stratified sampling यूज करेंगे, इन contrast to cluster sampling, जहां पर आपके जो क्लस्टर्स बन रहे थे बेस्ड ऑन द नेचुरल सब ग्रुपिंग्स थे, लेकिन उसके अंदर से जब आप क्लस्टर्स को पिक कर लेते हैं तो कुछ क्लस्टर्स की रिप्रेजेंटेशन टोटली खत्म हो जाती है. तो इन कंट्रास्ट टू दैट आप सर्टिफाइड सैम्पलिंग यूज करेंगे इफ यू नीड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी सब ग्रुप. अच्छा, एडवांटेजेस क्या है? बेटर एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेशन एंड जनरलाइजेबिलिटी, क्योंकि यू इंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच सब ग्रुप. जितनी भी आपकी पॉपुलेशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेस्ड ऑन उनकी जो सिमिलैरिटीज ऑफ कैरेक्टर और जो हेट्रोजेनिटी के पैटर्न है वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो इस वजह से जो रिजल्ट्स आएंगे वो जनरलाइजेबल भी हैं, एंड इट इज मोर फ्लेक्सिबल. ठीक है जी. अच्छा, अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आप इसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि कितनी प्रोपोर्शन, आप किस सब ग्रुप की कितनी प्रोपोर्शन ऐड कर रहे हो अपने सैंपल के अंदर. अच्छा, डिसएडवांटेजेस इसकी क्या है? अगर जो स्ट्रैटम है या स्ट्रैटा की डेफिनेशन इनकरेक्ट हो गई है और उसके अंदर जो इंक्लूजन है मेंबर्स की दैट इज इनकरेक्ट, तो फिर आपका सैंपल बायस हो जाएगा. ऑफ कोर्स इट इज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जिसकी डेफिनेशन करनी है और आइटम्स को आपने साइन करना है टू ईच स्ट्रैटा, और स्ट्रैटा के अंदर से फिर फर्दर आइटम्स सेलेक्ट होने हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग, एंड इट इज अगेन going to be complex, challenging, more challenging for with the population which is very large, और जिसके अंदर बहुत सारी heterogeneity है, बहुत सारे सब ग्रुप्स मौजूद है. एग्जांपल्स क्या है? स्टडिंग द सैलरी स्केल्स ऑफ एम्प्लॉय. तो आपने अगर इंश्योर करना है कि एम्प्लॉयज तो मेल्स भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी, तो जेंडर बेस्ड रिप्रेजेंटेशन आपको इंश्योर करनी है, तो देन वी कैन हैव स्ट्रैटा which for males and females, और उनकी proportions accordingly select की जा सकती है. Market research में define customer strata based on income levels and select units from each for sampling. ठीक हो गया. अच्छा, अब आ जाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे आसान और सबसे पहली वाली है कन्वीनियंस सैम्पलिंग. नाम से ही पता चला है कन्वीनियंस के साथ इसका कुछ ताल्लुक है. A sample is drawn from a part of population that is readily accessible or easy to contact. बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि मुझे अगर स्टूडेंट से कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मैं बजाय उठ के एक यूनिवर्सिटी के सारे कैंपसेस विजिट करने के, बस जिस कैंपस में बैठी हूँ
और वहां से आई आई टेक ए सैंपल, उधर ही के स्टूडेंट्स को मैं इंक्लूड कर लूँ अपने सैंपल में, तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज रेडीली एक्सेसिबल टू मी। ठीक हो गया। तो इस किस्म की जो सैम्पलिंग होगी उसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, क्योंकि वो प्योरली कन्वीनियंस पे बेस कर रही है। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी उसकी आप सामने देख रहे हैं, ये एनालिस्ट है, ये रिसर्चर है, और उसको जो करीब करीब लोग नजर आ रहे हैं उसने उनसे उनको अपने सैंपल में ऐड कर दिया। The sample is based on convenience rather than random selection, making it quick and easy to collect. ठीक हो गया। अब now it is best used when the researcher needs quick and inexpensive data collection. Quick तो हो गई बिकॉज आपको प्रिपरेशन कोई भी नहीं करनी पड़ी, जो आसानी से मिल गया एलिमेंट वो आपने सैंपल में डाल दिया, और जाहिर है कि इसमें एफर्ट नहीं लग रही। स्टडिंग ट्रेंड्स और ओपिनियन व्हेन स्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिवनेस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो और ये दूसरा पॉइंट भी साथ ही देख लेते हैं, कंडक्टिंग पायलट स्टडीज और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी आप इनिशियल रिसर्च वो कर रहे हैं रिसर्च, और अभी आपकी कोई कंक्लूसिव आउटकम्स नहीं आएंगे, रादर आप एक्सप्लोरेटरी फेज में है, यू जस्ट वांट टू लर्न मोर अबाउट द पॉपुलेशन बिफोर यू कुड एक्चुअली गो इनटू डिटेल एनालिसिस, जिससे आप कोई कंक्लूसिव आउटकम्स निकालेंगे। तो उसमें क्या है, यू वांट टू जस्ट स्टडी द ट्रेंड्स या ओपिनियन देखना चाह रहे हैं, और ये इतनी कोई हार्ड रिक्वायरमेंट नहीं है कि तमाम सब ग्रुप्स का या हर किस्म की जो आपके पॉपुलेशन के अंदर पैटर्न्स है उनकी रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेटिवनेस आपकी क्रूशल नहीं है इसमें, तो उस सूरत में कन्वीनियंस सैम्पलिंग इस्तेमाल की जा सकती है। एडवांटेजेस ऑफ कोर्स बड़ा सीधी सी बात है, आसान है, कन्वीनियंट है एंड क्विक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड एक्सप्लोरेटरी केसेस के लिए इट सूट्स द बेस्ट। टू बी इनहेरेंटली सैम्पलिंग बायस इसमें आएगा, क्योंकि आप तो पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर ही नहीं कर रहे, तो मिस रिप्रेजेंटेशन तो उसमें होनी है, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम ग्रुप्स तो उसमें आनी ही आनी है। तो जब बायस आ रहा है तो हमें मालूम है कि जनरलाइजेबिलिटी लिमिटेड है, और जो रिजल्ट्स की क्रेडिबिलिटी है ऑफ कोर्स इट विल बी कॉम्प्रोमाइज। फिर एग्जांपल्स देख लें क्या है, मार्केट रिसर्च, यानी कि आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई फीडबैक लेनी है ना, तो जो लोग बस गुजर रहे हैं पास से आपने उनसे पूछ लिया, आपने एफर्ट नहीं की इधर उधर जाके हर तरह के कंज्यूमर से पूछने की, बस जो सामने सामने आ गए उनसे आपने पूछ लिया। हेल्थ केयर रिसर्च के अंदर क्या है कि इंटरव्यूइंग पेशेंट्स अवेलेबल एट ए क्लिनिक ऑन ए पर्टिकुलर डे। ठीक है, अब आप अगर सर्टेन किसी एक क्लिनिक, आपने पॉपुलेशन ये ली है कि जी ऑल पेशेंट्स व्हिच आर विजिटिंग दिस क्लिनिक, ठीक है, एनी टाइम, तो उसमें अगर आप कहते हैं जी मैं बस एक ही दिन जाके मैंने सैंपल इकट्ठा कर लिया, तो वो आपके लिए तो इजी, आपने उधर से सैंपल इकट्ठा कर लिया, बट दैट डज नॉट एंश्योर रिप्रेजेंटेटिवनेस, बिकॉज only the people who were visiting that day जब आपने उसको कलेक्ट किया will be part of your sample, बाकी तो representation होगी नहीं। So this is also an example of convenience sampling. अच्छा, purposive sampling is another strategy of non-probability sampling, which is selecting participants based on researchers' expertise or judgment about who is most representative। ठीक है, अब ये purely वो है, subjective है to the skill or discretion of the researcher। ठीक है, मैं एज ए रिसर्चर मुझे जो मुनासिब लग रहा है कि जी ये आइटम आना चाहिए सैंपल के अंदर, तो आई मेक दैट सिलेक्शन। ये पर्पस ऑफ सैंपलिंग है, और उसकी आपको यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है। अब कन्वीनियंस से कैसे डिफरेंट है, वो अपनी करीब के या कन्वीनियंस वाले लोगों को नहीं उठा रहा, रादर उसकी अपनी जजमेंट के बेसिस पे whoever this analyst or researcher thinks to be more appropriate subject for their research, वो उनको चूज कर लेगा। ठीक है, the sample is chosen based on who the researcher believes will best represent the population or possesses specific characteristics relevant to the study। ठीक हो गया। अब ये किस सिचुएशन में आप इस्तेमाल करेंगे, जब आपकी रिसर्च के अंदर कोई बहुत ही स्पेसिफिक केसेस रिक्वायर्ड हैं जिनमें कोई खास कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो उस सूरत में आप इसको इस्तेमाल आप पर्पसिव सैंपल करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप सिर्फ इस चीज के ऊपर बेस कर रहे हैं, बेस्ड ऑन योर ओन जजमेंट, ऑन एक्सपर्टीज, कि अच्छा ये आइटम्स या इंडिविजुअल्स बेटर सूट माय स्टडी, तो आप उनको रिक्रूट कर लें अपने सैंपल के अंदर। द पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड द रिसर्चर नोज हु कैन प्रोवाइड द मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ये पॉसिबल भी उसी वक्त होगा ना, व्हेन द पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड द रिसर्चर नोज अबाउट द पॉपुलेशन एंड ही और शी आल्सो नोज कि अच्छा इसमें ये वाले जो आइटम्स हैं, ये वाले जो यूनिट्स हैं, दे possess those characteristics which are required for my analysis, तब ये सूट करेगी ये वाली सैम्पलिंग। और अगेन अगर आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं ना, क्योंकि देखें अब ये बेस करिए प्योरली जजमेंट ऑफ द रिसर्चर के ऊपर, तो जाहिर है कि यहाँ पर बायस तो इनहेरेंट है, आना ही आना है। तो इस वजह से अगेन इट इज गोइंग टू सूट द एक्सप्लोरेटरी काइंड ऑफ रिसर्च। दूसरा क्या लिखा हुआ है, केस स्टडीज, सर है कि अगर आप स्पेसिफिक केसेस को स्टडी कर रहे हैं ना, एंड यू डू नॉट हैव एनी इंटेंशन ऑफ जनरलाइजिंग इट
टू द एंटायर ग्रुप या कोई बड़े पॉपुलेशन के ऊपर उसको जनरलाइज करने की कोई इंटेंशन नहीं है, बल्कि सिर्फ केस को स्टडी करना है, तो उस सूरत में ये वाली इस किस्म की सैम्पलिंग काम आएगी। अच्छा, या फिर आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी कि जो ऐसी रिसर्च है जो क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट कर, ठीक है, जैसे कि लोगों के बिहेवियर को स्टडी कर रही है, लोगों के या सोसाइटी में कुछ फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रही है, या सोशल फिनोमिना को, या फिर आप लोगों के इंटरेक्शन, उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह, तो उस टाइप की रिसर्च को ये सूट करती है। ठीक है। अच्छा, इसमें एडवांटेजेस क्या है? फोकस्ड है, टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंट होगी, और स्पेशलाइज्ड रिसर्च के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ कोर्स सब्जेक्टिविटी है। अब आपकी सैंपलिंग से ही स्टार्ट हुआ था सब्जेक्टिविटी किस चीज की, कि जो रिसर्चर है उसने अपनी जजमेंट के मुताबिक लोगों को रिक्रूट किया था, तो अंडर रिप्रेजेंटेटिवनेस के रिस्क तो होंगे, और बिकॉज ऑफ दैट लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी। अब एग्जांपल्स क्या आएंगे? सिलेक्टिंग ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स टू डिस्कस इंडस्ट्री ट्रेंड्स, तो वो जो एनालिस्ट है वो अपनी जजमेंट के बेसिस पे कुछ लोगों को सिलेक्ट कर सकता है। Selecting Sharia scholars, Islamic financial experts from leading Islamic banks to explore the factors influencing the growth of Islamic banking. अब जाहिर है कि इस किस्म की रिसर्च के लिए, इस किस्म की स्टडी के लिए आपको पूरी पॉपुलेशन की लिस्ट नहीं चाहिए कि उसमें से आप रैंडम सैम्पलिंग करके लोग उठा लें, क्योंकि नॉट एवरीवन विल बी एबल टू प्रोवाइड sufficient या provide appropriate relevant information regarding the study. तो आपको तो वही स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए जिसके पास ये वाला नॉलेज अवेलेबल है। सो फॉर दैट मैटर एनालिस्ट खुद लोगों को सिलेक्ट कर सकता है, करना पड़ेगा उसको। अच्छा, फिर आ जाती है फाइनली स्नोबॉल सैम्पलिंग, और जैसे अपने नाम की तरह की इंटरेस्टिंग है ये। एग्जिस्टिंग स्टडीज पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अमंग देयर एक्वेंटेंस, यानी कि सिंपल सी बात ये कि आपने एक आइटम या एक इंडिविजुअल को सैंपल में डाला, और फिर उससे कहा कि भाई अपने जानने वाले लोगों को लेके आओ जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके पास हैं, विच आर अप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, जिस जो आपकी स्टडी के साथ रेलेवेंट है। सो दिस, ये उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी है। हमने कोई स्टडी परफॉर्म करनी थी, हमने दो पार्टिसिपेंट्स लिए जो कि हमारी स्टडी के लिए अप्रोप्रिएट थे, और उनको कहा कि अपने जैसे और लोगों को लिखे हैं, और उन्होंने और लोगों के लाए, और फिर और लोग, और फर्दर फर्दर इसी तरीके से, बिल्कुल स्नोबॉल इफेक्ट की तरह, जिस तरह स्नोबॉल एक्सपैंड करता है ना व्हेन इट कम्स डाउन, तो उस तरह थी। ठीक है, तो बिल्कुल जिस तरह स्नोबॉल ग्रो करता है ना, एक्सपैंड करता है, वो ज्यादा और स्नो साथ अपने गैदर करता जाता है, तो उसी तरीके से ये जो स्नो बॉलिंग है, इट वर्क्स द सेम। अच्छा, कब आप इस्तेमाल करेंगे? when the target population is hard to reach, hidden or not easily accessible। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में जाहिर है कि ऑलरेडी वो आइडेंटिफाइड ही नहीं है, हिडन पॉपुलेशन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई रेयर डिजीजेस के लोग हैं ना, या ऐसी डिजीजेस हैं विच पीपल डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज, या वो वैसे ही आइसोलेटेड होते हैं, वो सोसाइटी में बहुत मूव नहीं कर सकते हैं ओपनली अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से या सोशल इश्यूज की वजह से, तो उस सूरत में बट जनरली दे आर कनेक्टेड। ठीक है, ऐसे जो अंडर रिप्रेजेंटेड लोग हैं या माइनॉरिटी वाले लोग हैं ना, किसी भी एस्पेक्ट में, नॉट जस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी, अदरवाइज भी जो माइनॉरिटी है ना, वो आपस में फिर बड़े कनेक्टेड होते हैं। तो अब आपने कोई एक या बिल्कुल फ्यूअर पीपल फ्रॉम दिस ग्रुप, उनको रिक्रूट करिए अपने सैंपल में, और फिर उनसे कहा कि अपने नेटवर्क में से और लोगों को लेके आए जिनके अंदर ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसी सूरत में इस्तेमाल करेंगे। पार्टिसिपेट शेयर कॉमन ट्रेट पार्ट ऑफ क्लोजली नेटवर्क, ये वाली बात भी हमने कर ली है, ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड ही हैं। रिसर्च रिक्वायर्स बिल्डिंग ट्रस्ट विद इन कम्युनिटी और सब कल्चर, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप स्नोबॉलिंग करेंगे जहां पर एक माइनॉरिटी है या एक सब कल्चर है, एक सब कम्युनिटी है विद इन ए लार्जर कम्युनिटी, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है एक सोसाइटी के लेवल के ऊपर। तो ऐसी स्टडीज जो कि उनको कॉन्फिडेंस दे रही है, उनके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग कर रही है, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आ रही है, उन स्टडीज के लिए भी आप यानी कि ये वाला स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो अप्रोप्रिएट होती है। एडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तो है, ठीक है, बिकॉज अब आप पार्टिसिपेंट्स एक तो आपने रखे और उन्हीं से फिर आगे आपको अपने जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो मिल जाएंगे। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू दी हिडन पॉपुलेशन, क्योंकि उनका आपस में नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉग है, लेकिन यू कैन एक्सेस देम फ्रॉम देयर ओन लिंक्स। डिसएडवांटेजेस क्या है कि अब आपकी सैम्पलिंग जो है वो डिपेंडेंट हो गई है पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, वही जिन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे आप उन तक पहुंच सकते हैं। एंड लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी ऑफ कोर्स, वो तो उसकी नेचर ही ऐसी है कि आप जनरलाइजेबिलिटी उसमें पहुंच कर नहीं सकते। एग्जांपल्स क्या है? स्टडी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज सच एज अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स, ठीक है, जो लोग चले जाते हैं विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, तो उनको अगर आपने उनका से रिलेटेड कुछ स्टडी करनी है, तो ऑफ कोर्स वो इतनी ओपनली डिक्लेयर नहीं कर रहे होते, इतनी ओपनली फिर नहीं होते इस स्टेटस के साथ कि हम इमिग्रेंट्स हैं और हमारे पास जो नेसेसरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो नहीं है, लेकिन आपस में इनकी नेटवर्किंग होती है एंड दे नो ईच अदर, तो उस सूरत में इस्तेमाल हो सकती है। रिसर्चिंग पीपल विद रेयर डिजीज और कंडीशन की हमने बात करी, स्टडी ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज, तो अगर आपने कोई ऐसा बिहेवियर स्टडी करना है स्टूडेंट्स का जो इलीगल एक्टिविटीज, एग्जाम में चीटिंग के अंदर पेपर बच्चे इन्वॉल्व है, तो
जो ये काम करते हैं ना वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, नो ईच अदर। तो उनके लिए जाहिर है कभी पब्लिकली तो डिक्लेयर नहीं होगा, ओपनली तो डिक्लेयर नहीं होगा, बट बिलो दी सर्फेस दे नो हु इज डूइंग आपस में ये वाली एक्टिविटीज वाले जो बच्चे होंगे वो आपस में नेटवर्क होगा, तो यू कैन एक्सेस दैम। फिर आ जाती है फाइनली कोटा सैंपलिंग। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स एंड पार्टिसिपेंट्स सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन। ये तकरीबन सिमिलर है टू द स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, लेकिन दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने अब इसके ऊपर खास ज्यादा फोकस होता है कि आपने प्रोपोर्शन को मैच करना है विद द प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेड या कुछ डिजायर जो रिप्रेजेंटेड है इन द एक्चुअल पॉपुलेशन। ठीक है, इसके एग्जांपल ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। सैंपल इज चोजन टू शो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस दैट रिफ्लेक्ट द ओवरऑल पॉपुलेशन। जैसे कि अगर पाकिस्तान के अंदर 51% फीमेल है और 49% मेल है या व्हाटएवर प्रोपोर्शन, तो उस सूरत में आप जो सैंपल बनाएंगे, इफ यू वांट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन टू बी द सेम एज इट इज इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन एज इट इज इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन, तो फिर वी आर गोइंग टू फिक्स ए कोटा फॉर इट। इतनी हमने 10 में से हमने कितने फीमेल्स को रिक्रूट करना है ताकि वो प्रोपोर्शन मैच कर जाए, और कितने मेल्स को करना है रिक्रूट जो कि ये प्रोपोर्शन उनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन में प्रोपोर्शन से मैच कर जाए। व्हेन आर यू गोइंग टू यूज इट? व्हेन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक सबग्रुप्स इज रिक्वायर्ड एंड द एंटायर पॉपुलेशन लिस्ट इज नॉट अवेलेबल। क्योंकि अगर आपके पास पूरी पॉपुलेशन लिस्ट अवेलेबल होगी तो फिर तो आप स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कर सकते हैं, बट इफ दैट इज नॉट अवेलेबल तो फिर यू कैन गो फॉर नॉन प्रोबेबिलिटी कोटा सैंपलिंग। Time and budget constraints provide the use of probability sampling methods. The study focuses on particular characteristics where proportion representation is the key. ठीक है, जहां पे ये एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो प्रोपोर्शंस है वो सेम प्रोपोर्शंस हो जो कि ओरिजिनल पॉपुलेशन है, तो फिर आप ये करेंगे। जैसे कि आप प्रोडक्ट्स यूज करें ना इस क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए, एंड यू वांट कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन में जितनी प्रोपोर्शन डिफेक्टेड की आती है उतनी ही मेरे सैंपल में भी हो, ताकि हम स्टडी कर सकें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ जो आपके नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं और जो जितने डिफेक्टिव पीसेस आ रहे हैं, और हम कोई जो प्रोडक्शन मैकेनिज्म है उसके बारे में कोई दूसरी बातों से निकाल सकें, तो वहां पर हम कोटा सैंपलिंग कर सकते हैं कि डिफेक्टेड का कोटा निकाल लें टू मैच द प्रोपोर्शन इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन। अच्छा, एडवांटेजेस क्या होंगे? आप जितने भी सब ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी एज पर द प्रोपोर्शन, क्विक एंड कॉस्ट एफिशिएंट, फ्लेक्सिबल एंड इजी टू यूज। डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा बायस। ये जरा लिस्ट आपके पास नहीं थी, तो आप जो भी सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें बायस तो शुरू से ही आ गया। जनरलाइजेबिलिटी की लिमिटेशन और फिर सब्जेक्टिविटी। जितनी भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग्स हैं जिसके ऊपर हम पूरी पॉपुलेशन को लिस्ट नहीं कर रहे, तो दे डू रन द रिस्क ऑफ जो सब्जेक्टिविटी एंड मतलब सैंपलिंग बायस, जिसकी वजह से लैक ऑफ जनरलाइजेबिलिटी आएगी और सब्जेक्टिविटी। अच्छा, एग्जांपल्स क्या है? पॉलिटिकल पोलिंग बिफोर इलेक्शंस। अब अगर हम पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करें बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक कोटास, सच एज हर एज ग्रुप के लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, हर जेंडर की है, रीजन की है, तो ये आपकी एग्जांपल हो गई कोटा सैंपलिंग की। और फर्क कैसे हो गया स्ट्रेटिफाइड में? क्योंकि यही स्ट्रेटास भी बने, लेकिन स्ट्रेटा जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है उसमें आपके पास कंप्लीट लिस्टिंग मौजूद है एंड तमाम जो पॉपुलेशन है उसका प्रोबेबिलिटी हर एलिमेंट की नोन है ऑलरेडी। हेल्थ सर्वेस में रिसर्च शोस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स इन स्टडी पब्लिक हेल्थ बाय सेटिंग कोटास बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, यानी कि आपके मुख्तलिफ लोगों एथनिसिटी के जो लोग किसी एक कंट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सबकी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो आप कोटा सैंपलिंग यूज कर सकते हैं। मीडिया ऑडियंस सर्वे के अंदर सर्विंग टेलीविजन व्यूअरशिप हैबिट्स एंड शोइंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अर्बन एंड रूरल एरियाज, डिफरेंट इनकम ब्रैकेट्स और एज ग्रुप्स, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोटा सैंपलिंग। एंड नाउ इट why is it जो फाइनल वर्ड्स है हमारे इसके, the factors which we need to consider to select sampling method are, एक तो आपकी स्टडी का गोल क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन साइज कितना था, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, हेटेरोजेनस है या होमोजेनस है, अवेलेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन लिस्ट है यानी कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स की पॉपुलेशन मौजूद है, टाइम कितना है, बजट कितना है, नेचर ऑफ पॉपुलेशन कैसी है, जनरलाइजेबिलिटी रिजल्ट्स की रिक्वायर्ड यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वो तो रिसर्च करनी है, और बायस के रिस्क कितना टॉलरेट किया जा सकता है। तो इन सारी चीजों के बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करना है। एंड ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है जस्ट टू टेस्ट योरसेल्फ। ये इन सारे केसेस के अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वाला सैम्पलिंग मेथड बेस्ट सूट करेगा, और आप कमेंट्स के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं।